కొన్ని ఖర్చులు కాదు సార్ బ్యాంక్ తప్పనిసరైన లాస్ అయినా కొన్ని without paying them. Gentlemen, Adab. Independence Day greetings to all of you. Before we begin, may we invite Mr. Siddharth Mishra, Retail Business Head Eastern APT Mega Zone of ICICI Bank, to begin the evening. Good evening, ladies and gentlemen. It's indeed a privilege to welcome all of you. Just celebrating the 73rd Independence Day, and it's our privilege to welcome all of you for such a glorious evening. Today also so Independence Day, when you have celebrated yesterday, and it's a very special day for each one of us. But also this year, it is more special for us because we are celebrating the 150th anniversary of the birthday of father of the nation, Mahatma Gandhi, and also Kasturba Gandhi. So that's why it is very, very special to us. And when I met Paliwalji, the writer of the play, and when he spoke about the Gandhian thoughts and the Gandhian philosophy, and he spoke about Mrs. Kasturba Gandhi, we really feel affiliated with the thought. Because even after 150 years of Gandhi's birth, we are speaking about him, and he's the most revered political leader.
But as the cliché goes, behind every successful man there is a woman, but very less is known about the woman behind the father of the nation, and very less known about Kasturba Gandhi. When I was speaking to some of my colleagues, they're talking about Kasturba Gandhi, that immediate connecting to any other lady of Gandhi picture. So I thought it's really apt to bring that lady who is actually the backbone of the father of the nation, but actually supported Gandhiji during his fight for justice, first at South Africa, then after that in India. But actually made Gandhiji the father of the nation. So we thought it will be our privilege to be associated with Muhammad Ali Begi and Maliwalji, by which we can bring the story of Kasturba to all of you. But when I'm standing here, I should also like to thank you for all your patronage to ICICI Bank. We are all here for the last 65 years, and we are celebrating also 25th year of our retail banking journey here. We have participated in the growth of the country in terms of industrial revolution, during the infrastructure growth, and today in the digital era. And we are supporting every dream of our customers, the way the lady what we are speaking about had supported Gandhiji in his journey of getting the freedom to the country, getting the independence to the country. Also, carrying the same thought of Gandhian thoughts of inclusiveness, we have set our ICICI Foundation, and from the inception, we have trained 3.87 lakhs of youth of this country unemployed. And on this 150th anniversary of Gandhi's birth, we have also taken a commitment, self-goal, that we will cumulatively train 5 lakh youth of this country, and out of that 2.5 lakhs will be women. And that's what is the commitment what ICICI Bank is having for building the nation and building the skill of the youth of this country. Thanking you all once again for coming here, spending the evening with us, and wish all of you a great evening with the Muhammad Ali sir's creation of Kasturba. Thank you. Thanks a lot. Theatre Foundation, in association with ICICI Bank and the Department of Information and Public Relations, Government of Telangana, and Radisson Blu Plaza, Hyderabad, welcome you to Kasturba, commemorating 150 years of the birth of Kasturba Gandhi and Mahatma Gandhi on the occasion of our Independence Day. Kasturba, written by R.K. Paliwal, is produced by Begum Razia Beg and designed and directed by Padma Shri Muhammad Ali Beg. Set in Pune's Aga Khan Palace in the period between 1942 and 1944, during the Quit India movement, the play is an emotional account of the 2 years spent in captivity of this iconic couple. Incidentally, this was the longest period the two spent together all their lives. Kasturba passed away in confinement at the Aga Khan Palace, and her samadhi lies there. This evening is made possible by ICICI Bank and DIPR. Duration of the play is 70 minutes without an interval. Before we begin, may we request you to kindly switch off your cell phones or keep them on silent mode, and for photographers to please refrain from using flash bulbs. Ladies and gentlemen, Khadir Ali Beg Theatre Foundation's कस्तूरबा और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से दुनिया भर में यह साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी हमारी आजादी के आंदोलन के महानायक और महानायिका थे, जिनका पूरा जीवन आजादी के आंदोलन को समर्पित था। महात्मा गांधी के बारे में तो हम सब बहुत कुछ जानते हैं,
लेकिन कस्तूरबा गांधी के बलिदान के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कस्तूरबा गांधी ने न केवल महात्मा गांधी की सहधर्मिणी के रूप में आजादी के आंदोलन में गांधी जी का बराबर का साथ दिया, बल्कि उन्होंने अपने दम पर गांधी परिवार और आश्रमों का भी पूरा ख्याल रखा। आज का प्रस्तुत नाटक कस्तूरबा के लेखक R.K. पालीवाल ने कस्तूरबा गांधी के जीवन पर शोध कर उनके जीवन के कुछ अनछुए प्रसंगों पर प्रकाश डाला है। इस नाटक की पृष्ठभूमि 1942 के उस उथल-पुथल वाले दौर की है जब महात्मा गांधी और कस्तूरबा ने देश की आजादी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध अगस्त क्रांति मैदान से अंतिम हुंकार। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी और कस्तूरबा जी को उनके निजी सहायकों महादेव देसाई और डॉक्टर सुशीला नैयर आदि के साथ पुणे की आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया था। आइए चलते हैं 1942वीं से 1944वीं के दौरान आगा खान पैलेस नजरबंद बापू और बा के साथ। Dear Viceroy, I am writing to you this letter from Aga Khan Palace. You have detained me here बा आप यहाँ? प्रणाम बा। तुम दोनों अचानक, सब खैरियत तो है? कुछ भी तो ठीक नहीं है बापू। सरकार ने आपको यहाँ अज्ञातवास में भेज दिया और बाहर सब परेशान है। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। किसी को नहीं पता कि आप यहाँ हैं। और तुम दोनों बाहर वालों को अकेला छोड़कर यहाँ चली गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो यहाँ मजे में हूँ। मेरी माँ यूं ही परेशान रहती है मेरे बारे में। सेवाग्राम को तुम्हारी जरूरत है। तुम जल्दी वहां लौट जाओ। आप गलत समझ रहे हैं। हम अपनी मर्जी से थोड़े ही आए हैं यहाँ पर। अपनी मर्जी से नहीं आई? क्या मतलब? हाँ? तुमने सरकार से मिन्नत की होगी कि हमें अपने पति से मिलना है। तुम्हें इस निकम्मी सरकार से दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। आपको पता भी है सरकार हमें गिरफ्तार करके लाई है यहाँ पर। हमें तो पता भी नहीं था कि हमें यहाँ लाया जा रहा है। तू ही बता सुशीला, मेरे तेरी बात पर ज्यादा यकीन आएगा। बात ठीक कह रहे हैं बापू। हमने कोई अर्जी नहीं दी। हम भी यहाँ आप ही की तरह कैदी की हैसियत से लाए गए हैं। महादेव, ये कौन सी चाल है सरकार की? हाँ? सरकार हम दोनों को एक जगह रखकर जनता की सहानुभूति लेना चाहती है और दूसरी ओर सेवाग्राम को उजाड़ने की साजिश है। इन अंग्रेजों को समझना आसान नहीं है बाबू। अगर इन्हें हमसे सहानुभूति होती तो ये हम पर इतनी जातियां क्यों करते? जरूर कोई चाल है इसमें अंग्रेजों की। देखना अभी कुछ ही दिन में असलियत सामने आ जाएगी। अभी हम तो ठहरे यहाँ अज्ञातवास में। एकांत इतना कि काटने को दौड़ता है और बाहर इतना कड़ा पहरा कि चिड़िया भी नहीं घुस सकती।
जरूर इसमें कोई चाल है सरकार की। ये एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो ये प्रचार करेंगे कि हमने गांधी और उसकी बीमार पत्नी को एक जगह रखा है, वो भी कोई मामूली जगह नहीं है, सब सुविधाओं से संपन्न आगा खां पैलेस, और दूसरी ओर सेवाग्राम को खाली कर दिया। तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि तुम्हें गिरफ्तार कर कहाँ ले जाएंगे। आप तो हमेशा शंकानु निगाह से ही देखते हैं। जब हर चीज में ईश्वर की मर्जी छुपी होती है तो इसमें भी कोई अच्छा ही छुपा होगा। और फिर आपके पीछे हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। यहाँ कुछ दिन रहेंगे, आप लोगों की सेवा टहल करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा ना। और सुशीला देखना कितने कमजोर हो गए हैं ये दोनों। यहाँ तो खूब एकांत मिलता होगा चिट्ठी पत्री लिखने के लिए, क्यों महादेव? खूब रगड़ाई करते होंगे बापू, तुम्हारी भी और अपनी भी। हाँ, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं। वाह, मेरा जीवन तो बापू और आपके चरणों में समर्पित है। बापू का काम करके मेरे मन को बहुत संतोष है। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। अच्छा बा, आप तो हमेशा बेटों की ही तारीफ करती हैं। क्यों, मेरे जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए सबके यहाँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, तेरे जैसी तो 10 बेटी भी होना एक घर में तो भी कम है। तू तो हीरा है, हीरा, पूरे 16 कैरेट का। महादेव, बेटा तेरा काम तो दुगना हो गया। पहले तो बापू की सेवा टहल करता था, अब तो सरकार ने तेरी माँ को भी यही भेज दिया है। तो ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरी माँ बीमार लगती है, जेलर से बात करके उसकी ठीक ठीक व्यवस्था कर दे। ये चिट्ठी पत्री तो होती रहेगी। ज्यादा जरूरी काम तो निपट ही गया है। अब मैं थोड़ा आराम कर लूं। जी बाबा। प्रणाम बाबू। सुखी रहो। प्रणाम। सुखी रहो। बाप यहाँ आ गए, अच्छा ही हुआ। बापू अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें भी आपके स्वास्थ्य की चिंता लगातार रहती है। देखना, अभी कल से ही आपकी प्राकृतिक चिकित्सा शुरू। वाह, लेकिन इस बार आप बहुत कमजोर लग रही हैं। मैं जेलर से बात करके आपके रहने की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। अब अपने मन की कहाँ चिंता है महादेव, अब तो तुम्हारी, बापू की और देश की चिंता है। मेरा तो अब अंत समय आने वाला है। तेरी बाप ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है महादेव, महीना 2 महीना बस। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। कम से कम आखिरी घड़ी में बापू तो सामने होंगे मेरे। वाह, आपने फिर अंतिम घड़ी का राग आलापना शुरू कर दिया। देखना, आपकी ये डॉक्टर बेटी आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देगी। देश आजाद होने से पहले आपको मरने की आजादी नहीं मिलने वाली। बात डॉक्टर सुशीला बिल्कुल सही कर। हम सबके लिए, बापू के लिए और देश की आजादी के लिए आपका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। आप साथ रहती हैं तो बापू के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं, और दूर रहती हैं तो पूरा सेवाग्राम संभालती हैं। एक बात तो है महादेव, बापू के साथ रहकर तू भी अच्छी अच्छी बातें करना सीख गया है। हाँ? मस्का अच्छा लगा लेता है तू। क्यों सुशीला, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हमारे बा के मुंह से तो कभी कुछ गलत निकलता ही नहीं। अच्छा, तो तू भी महादेव की तरह मस्का लगाने लगी। आप लोग रुके, मैं जेलर से बात करके वापस आता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। जी बेटा। सुशीला बेटा। जी बा। मुझे ऐसा लगता है जैसे
बापू को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। क्यों बा? अच्छा क्यों नहीं लगा? मुझे तो लगा कि बापू आज ज्यादा प्रसन्न है। नहीं, बापू आजकल मुझसे दूर भागते हैं। वाह, बापू भले आपके सामने कुछ ना कहें, लेकिन आपके पीछे बात बात पर आपका जिक्र करते हैं और तारीफ भी करते हैं। मेरे सामने तो तारीफ करते नहीं। यही तो सच्चा प्यार है बा। बापू अंग्रेजों की तरह दिखावा नहीं करते, वैसे दिखावा करना भी चाहिए थोड़ा सा। वाह! अरे मनु, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बाप यहाँ देखो, आपके आने से ही उजाड़ भी खिल उठा। आपके आने से हम सब खुश हैं। अब तो बाकी रसोई में मेरी पसंद की सारी चीजें बन सकेंगी। पता है बाप, इतने दिनों से एकदम बेकार खाना खा रहे थे। आज तो आप थकी होंगी। कल पूरी पूरी बनाना, बहुत दिनों से नहीं खाए। जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जेलर से इजाजत तो ले लो। और अगर तेरे बापू नाराज हो गए तो? बापू इतने बुरे भी नहीं है बाप, और मैं तो उनकी लाडली बेटी हूँ ना। लाडली बेटी है, इसीलिए तो नाराज हो सकते हैं। बापू अपने प्रियजनों के प्रति ही तो सख्ती बरतते हैं। बाप, यहाँ आपकी तुलसी नहीं है। आगा खा पैलेस में पेड़ पौधे तो बहुत है, लेकिन मुसलमान तुलसी नहीं लगाते ना। वो तो मैं साथ ले आई हूँ। अब तू जा, जल्दी से एक लोटा पानी ले आ। देखना कितनी मुरझा गई है गर्म हवा में। आप भी लाए। बा, आपने अपने साथ तुलसी के पौधे को भी जेल की हवा खिला दी। अब तो इसे भी जेल के नियम और कायदे मानने पड़ेंगे, क्यों बापू? बिल्कुल, जेल के नियम तो सभी को मानने पड़ते हैं। कोई अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। बा, इसे पानी पिलाने के पहले जेलर से परमिशन तो ले लो। परमिशन की क्या जरूरत है? क्या करेंगे वो? मेरी जेल लंबी कर देंगे या मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, लेकिन अपनी तुलसी को जल तो मैं फिर भी चढ़ाऊंगी। देखा मनु, तेरी बा हम सबसे लीडर है, हा? जो एक नन्हे पौधे के लिए अपनी जान दे सकता है, वो देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी दे सकता है। ये सब आपसे ही तो सीखा है। शिक्षक तो आप ही है ना? नहीं, शिक्षक से ज्यादा सीखने वाले पर निर्भर करता है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। चलो मनो, थोड़ा टहल आते हैं। बापू, आज किसकी कहानी सुनाएंगे आप? आज तेरी बा आई है ना, आज उसकी कहानी सुनाते हैं। सुनोगी अपनी बूढ़ी बा की कहानी? हाँ? उस वक्त की जब वो तेरे जैसी नटखट बच्चे थी, उस वक्त की जब वो मीरा बहन जैसी जवान थी, उस वक्त की जब वो सरोजिनी नायडू जैसी, अब जैसी बूढ़ी नहीं थी। बापू, उस वक्त आप भी तो बूढ़े नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बूढ़ा नहीं था, सूट बूट पहनता था। तेरी भाभी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती और उसे गहनों का भी बहुत शौक था। क्या बापू, आप भी शुरू से बताइए ना, जब आप मेरे जैसी थी। बताओ? अरे, वो तुझसे भी छोटी रही होगी जब हमारी शादी हुई थी। इतनी जल्दी?
पहले ऐसा ही होता था, देहात में तो अभी भी ऐसा ही होता है। लड़की 12 साल की हुई नहीं कि शादी कर देते हैं, न स्कूल न कॉलेज और न ठीक से समझदार होने देते। और तू भी अगर गांव में होती ना तो तेरी भी शादी हो गई होती। अच्छा, बा ने अपने पिताजी को मना नहीं किया कि इतनी जल्दी शादी ना करे? वहां सुनता कौन है लड़की? लड़की 12 साल की हुई नहीं कि माँ बाप शादी तय कर देते, बस बेचारी चुपचाप गौ माता जैसी चली जाती है ससुराल। तेरी माँ भी ऐसे ही आई थी, गुड़िया जैसी हमारे पास। आपने भी विरोध नहीं किया कम उम्र में शादी का? सच तो ये है मनु कि मैं वो उस वक्त समझदार भी नहीं था। मेरी बात से थोड़ा छोटा था उम्र में लेकिन तेरी बात मुझसे ज्यादा समझ। मैं तो पढ़ लिख कर भी एकदम निकट्टू था, लेकिन उसमें भी मुझे कई कमजोरियां, कई अवगुण थे। लेकिन तेरी बात बचपन से ही समझदार थी। वो कैसे? मैं तो इतना पढ़ लिख कर भी कोई ठीक से काम कर पाया ना कोई धंधा। लेकिन तेरी बात सारे घर का काम करती, पूरे घर वालों का ध्यान रखती थी, मेरी सेवा भी करती थी। लेकिन मैंने तेरी बात को बहुत कष्ट पहुंचाया, उसके चरित्र पे भी शक। मैं उसे बहुत कष्ट पहुंचाया है, इसका सदा अफसोस रहेगा। बापू, आपने कभी बा की पिटाई भी लगाई है? हम मौसी कहती हैं बहुत से मर्द अपनी पत्नियों को बहुत पीटते हैं। नहीं, मैंने तेरी बाप पे कभी हाथ नहीं उठाया। ऐसा नीच काम तो मैं कभी नहीं कर सकता, और जात पर तो बिल्कुल ही नहीं। आप तो बैरिस्टर थे ना बापू, फिर आपने बा को क्यों नहीं पढ़ाया? इसमें मेरा दोष नहीं। मैं तो चाहता था तेरी बा घर पर रहकर सब पढ़े, भाषा, इतिहास, भूगोल, गणित। लेकिन तेरी बा को घर के काम से फुर्सत ही नहीं थी, और उसे सबसे बतियाने की बड़ी आदत थी। और पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। लेकिन अब तो बा अंग्रेजी भी बोल लेती है और हिसाब भी लगा लेती है। और एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। कौन सी बात? हमारी बात से मिलकर कोई ये नहीं कह सकता कि वे अनपढ़, बल्कि यही लगता है कि उन्हें देश दुनिया की सारी जानकारी है। केवल इतना ही नहीं, तेरी बात तो आश्रम वासियों को खाने में क्या पसंद है, आश्रम के अतिथियों को किसे मीठी चाय चाहिए, किसे बिना दूध की कॉफी चाहिए, सब जानती थी। वो पूरे आश्रम का ध्यान रखती थी। आज मैं जिस मकाम पर हूं उसका श्रेय तेरी बा को जाता है। पिछले 60 साल से मेरी परछाई की तरह रह रही है। मैंने देश विदेश का भ्रमण किया, कितनी बार जेल गया, लेकिन बावजूद इसके साबरमती सेवा ग्राम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अगर तेरी बा मुझ जितना पढ़ लिख जाती, मुझसे भी आगे निकल जाती। तुम सब बच्चों को मुझसे ज्यादा अपनी बात से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हमारे देश की सब बहनों में तेरी बात जैसे व्यवहार, आचरण, सेवा, त्याग, इन सब की भावना आ जाए ना,
तो वो दिन दूर नहीं है जब सारा संसार भारत का लोहा माने। चले? हाँ। इसके आगे की कहानी तो तू जानती है ना? चल। अच्छा बापू, हरिलाल काका के बारे में भी बताओ ना। वे हमसे दूर क्यों रहते हैं? आप उनसे नाराज हैं ना बापू? एक दिन में एक पात्र की कहानी सुननी चाहिए। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। ये तुम्हारा कयास बिल्कुल गलत है कि मैं हरिलाल से नाराज हूं। मैं हरिलाल से नाराज नहीं हूं, दुखी हूं। जहां तक उसके आश्रम में रहने का सवाल है, आश्रम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। वो भी आश्रम में रह सकता है, लेकिन आश्रम के नियम सबको मानने पड़ते हैं। किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। और हरिलाल के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी बात से सुननी चाहिए। ईश्वर और तेरी बात के अलावा उससे और कोई नहीं जानता। चले? तेरी बात राह देखती होगी। प्रणाम बा। जी बता रहे हो? बा, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? मुझे भला यहाँ क्या कष्ट होगा? हाँ? ये तो वैसे भी राजमहल है। मैं तो अफ्रीका की सड़ी जेलों में भी रह चुकी हूँ। ये जगह तो लाख दर्जे बेहतर है। नहीं, आपकी तबीयत देखकर लगा बा कि आपको यहाँ का माहौल रास नहीं। बेटा, इस उम्र में तबीयत तो ऊपर नीचे होती ही रहती है ना। 72 साल की हो गई हूँ मैं। हाँ? तबीयत तो फिर पर मुझे तू एक बात बता, तूने कितने सारे काम अपने सर पर ले रखे हैं? हाँ? बापू की सेवा टहल, प्रार्थना सभा, चिट्ठी पत्री और फिर हमारी देखभाल। तो जरूर पिछले जन्म में हमारा बेटा रहा। बा, मैं तो इस जन्म में भी आपका ही बेटा और चाहूंगा कि अगले जन्म में भी आपका ही बेटा बने। तेरे जैसे बेटे को तो हर स्त्री जन्म देना चाहेगी महादेव। धन्य है तेरे माँ बाप जिनके यहाँ तेरे जैसा हीरा जन्मा है। तू भी बड़ा भाग्यशाली है। भगवान इतने सारे गुण एक आदमी को बहुत कम देते हैं। लेकिन बेटा, तू अपना ख्याल रखना भी तो ठीक सीखना। हाँ? थोड़ा आराम करा कर। बापू तो तुझे आराम करने को कहेंगे नहीं। बापू इस उम्र में भी कितना काम करते हैं, फिर मैं तो उनसे कितना छोटा हूँ। इसीलिए तो बापू भी परिश्रम पर इतना जोर देते हैं। बा, तू और तेरे बापू के पास तो हर चीज का, हर बात का जवाब है। ये ले, प्रसाद ले। तुलसी के पत्ते स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। जीवित आ जाओ बेटा। हरिलाल की कुछ खबर मिली क्या? कहीं उसने कोई नया बखेड़ा तो नहीं शुरू किया? बा, उनके यहाँ ना आने का मतलब है कि सब ठीक ठाक है। और वैसे भी हरिलाल जी जिस रास्ते पर निकल चुके हैं, वहां से किसी शुभ समाचार के आने की उम्मीद करना बेकार है। बा, मैं तो अब आपसे भी कहूंगा कि आप इसे अब
आप इसे अब ईश्वर की नियति समझकर स्वीकार कर ले बाप। सुना है आज जेल अधीक्षक भंडारी जी आए थे। अरे हाँ महादेव भाई, भंडारी जी आए थे। हमसे पूछ रहे थे बा और बापू को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं। तो हमने भी कह दिया वाह भंडारी जी, ये खूब पूछा आपने, ये तो कटे पर नमक डालने जैसी बात हो गई। तालाब से 2-4 मछलियों को उठाकर रेत के महल में रख दिया और फिर उनसे पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो आपकी मजाक करने की आदत से वाकिफ नहीं है। आप तो बापू को भी नहीं बख्शती। हम सब तो यहाँ पर मजे में हैं। अरे महादेव भाई, आप बापू के परम शिष्य होकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? और बापू यहाँ बहुत दुखी हैं। बाहर सरकार का दमन चक्र चल रहा है कांग्रेसियों पर, और बापू यहाँ इस भूतहा एकांत में अलग थलग पड़ गए हैं। उधर बा भी बीमार है, ऊपर से सरकार बापू और कांग्रेस के प्रति तरह तरह के दुष्प्रचार कर रही है। जहाँ तक जेल की सुविधाओं का सवाल है, हमें तो कोई शिकायत नहीं। वो कटेली जी तो अपने दोस्त जैसे बन गई हैं। तभी मैंने भंडारी जी को कहा कि मेरे मजाक का बुरा तो नहीं माना उन्होंने। दरअसल मेरा मानना है कि थोड़ी सी हंसी मजाक से अजनबी लोग जल्द ही एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। हे भगवान, महादेव भाई, महादेव भाई, महादेव भाई। सुशीला, महादेव, महादेव, ये क्या हो गया बेटा? हाँ? ये कभी कितना काम पड़ा है, तू ऐसे बीमार पड़ेगा तो कैसे होगा बेटे? सुशीला, एक बार इसकी आंखें खोल दे, फिर देख, इसका इलाज अपने हाथ में ले लूंगा। बापू मासिव हार्ट अटैक लगता है। चुप चुप बोल बेटा। इस बूढ़े को अकेला जेल में छोड़कर ये कैसे जा सकता है? हाँ? बापू, महादेव भाई हमें छोड़कर चले गए। ये तूने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया? तू तो हमें पूछे बिना कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था, आज इतनी दूर निकल गया। तू तो हरिलाल से भी ज्यादा निर्दयी निकला रे। तुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि तेरे बिना बापू और माँ की क्या हालत होगी? तो हमारा सबसे प्यारा बेटा था रे। लौटा मेरे बच्चे, लौटा मेरे बच्चे, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। तेरे बापू की क्या हालत होगी? बापू, बाकी हालत इस बार कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। जानता हूँ, महादेव की मृत्यु से उबर नहीं पाई रही है। इसकी बीमारी देह से ज्यादा मानसिक है। डॉक्टर की राय है पेनिसिलिन देने से आराम आ जाएगा। मानसिक बीमारी का इलाज पेनिसिलिन से थोड़ी होता है।
डॉक्टर की राय तो माननी ही चाहिए ना बापू हमें। क्या डॉक्टर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पेंसिलिन लेने से ठीक हो जाएगी? ये कहना तो मुमकिन नहीं। पेंसिलिन लेने से आराम हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ऐसा है, मैं इस अवस्था में, इस उम्र में ईश्वर से प्रार्थना करना पसंद करूंगा। बाबू, डॉक्टरों की सलाह हमें माननी नहीं चाहिए। पेंसिलिन से आपकी तबीयत ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं इसमें बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन जैसे ही ये होश में आए इनसे भी पूछ लेना कि इन्हें इंजेक्शन पसंद है या नहीं। मुझे लगता है कि ये भी मना ही करेगी। वैसे पेंसिलिन आने में भी कई दिन लग सकते हैं, हमें मंगा लेनी चाहिए। लगाने न लगाने का निर्णय तो बाद में भी लिया जा सकता है ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं अभी जेलर से मिलकर पेंसिलिन मंगाने के लिए कह देता हूँ। हाँ? नींद बेहोशी में महादेव को याद कर रहे थे। आपको कैसे पता चला? 62 साल का साथ है हमारा। मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जान सकता? हाँ? तुम्हारे होठ फड़फड़ा रहे थे, उसी से ऐसे ही लगता था। मेरे सपने में कभी महादेव आता है तो कभी हरिलाल आता है। महादेव तो मुझसे मिलने आ नहीं सकता, मुझे ही उसे मिलने जाना होगा। लेकिन जाने से पहले हरिलाल से मिलने का मन है। उसे भी तो मेरी याद आती ही होगी ना। एक बार हरिलाल से मिलकर जाने से मन शांत रहेगा। देवदास को कह देता हूँ, वो हरिलाल को खबर कर देगा कि तुम अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। हमारी तो बोलने बतियाने की भी हालत नहीं है अभी। अब मेरी तबीयत ठीक होने की संभावना नहीं है। मुझे तो यहाँ आते ही लगने लगा था कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकूंगी। महादेव के जाने के बाद तो जीने
की बची कुची इच्छा भी खत्म हो गई है। बस आपकी चिंता है, इसीलिए प्राण अटके हैं मेरे। मुझे क्या हो, मैं तो भला चंगा हूँ। वैसे मैं गुलामी में मरना नहीं चाहता। मेरा बस चले तो इन अंग्रेजों को देश से बाहर भगाए मरूंगा नहीं, चाहे इसमें 100 साल लग जाए। सब में आप जैसी इच्छा शक्ति नहीं होती। इच्छा शक्ति तो कर सकते हैं, हम जिसे सबसे अधिक चाहते हैं उसी के लिए इच्छा शक्ति करनी पड़ती है। पानी पी लो। राय लेनी थी। राय किस बारे में? किस बारे में? पेंसिल इतनी बार बीमार पड़ रही है, इतने दिन से बीमार पड़ रही है, पेंसिलिन लेने में क्या है? डॉक्टर कहते हैं कि पेंसिलिन लेने से तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी। आप क्या कहती हैं? देवदास भी यही कहता। मैंने देवदास की नहीं, आपकी राय पूछी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी इंजेक्शन पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अब मेरी तो कुछ लेने की इच्छा नहीं है, केवल हरीलाल से मिलने का मन है। बस। आयुर्वेदिक दवा के बारे में क्या कहती हो तुम? हाँ? उसे लेने में तो कोई नुकसान नहीं है। अब इतनी कमजोर थी वो, और आगे चलाने में मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। पहले हरीलाल की पत्नी गुलाब गई, फिर महादेव भी चला गया। अब मैं भी कब तक बैठी रहूंगी? बस शांति से जाने का मन है मेरा। बापू ने मुझे आपकी जवानी की कहानी सुनाई। खूब बुराई की होगी बापू ने मेरी। बापू क्यों बुराई करेंगे मेरी प्यारी 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 मोटी माँ की? और मैं सुन भी नहीं सकती आपकी बुराई। और किसकी कहानी सुनाई बापू ने? महाभारत की, रामायण की, बाइबल की और भी बहुत सारी। बापू ने बहुत सी किताबें पढ़ी है माँ। और तेरी माँ अनपढ़ ही रह गई। मेरी माँ अनपढ़ का है? आपको तो अंग्रेजी भी आती है और आप बापू से भूगोल और इतिहास भी सीख रही हैं।
लेकिन बेटा पढ़ाई अब याद नहीं रहती। जब पढ़ने की उम्र थी तब पढ़ने का मन नहीं किया, और अब सारा पढ़ा हुआ भूल जाती हूँ। अच्छा बा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो हरि काका के बारे में। हरिलाल के बारे में? हरिलाल के बारे में क्या पूछना चाहती हो? हरि काका और बापू एक साथ क्यों नहीं रहे बा? दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही मिट्टी के बने हैं, पर दोनों की तासीर अलग अलग है। मैं भी नहीं जोड़ पाई उन दोनों को। हरि काका की सब बुराई करते हैं बा, कोई ज्यादा तो कोई कम। पर आपने कभी उनकी बुराई नहीं की। मैं माँ हूं ना उसकी। आप हरि काका से नाराज भी नहीं हैं? नाराज तो हूँ बेटा, नाराज तो हूँ, लेकिन उससे ज्यादा दुखी हूँ उसके आचरण से। कुछ काम तो उसने बहुत ही गलत किए। भटक गया बेचारा, और भटकता ही चला गया, भटकता ही चला गया। किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। अगर गुलाब जिंदा होती तो शायद इतना ना भटकता, इतना ना भटकता बेचारा। बापू को भी बहुत दुख पहुंचाया ना हरि काका ने? उसने किसी दुख नहीं पहुंचाया, खुद भी तो दुखी रहा है, फटे हाथ तो रहता है वो। इसीलिए गुस्सा भी नहीं आता उस पर, गुस्सा भी नहीं आता। ठीक हो? एक अच्छी खबर लाए हैं तुम्हारे लिए। अच्छी खबर? हाँ। मेरे लिए? भला क्या हो सकती है? आज हरिलाल आ रहा है मिलने तुमसे। हाँ? जेलर ने उसे परमिशन दे दी। हरिलाल आ रहा है? हाँ। हरिलाल आ रहा है? हाँ। आखिर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। ईश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। हाँ? बस हम भी हैं, देर सवेर हो जाए तो अंधेर कहने लगते हैं। आदमी अधीर हो जाता है। थोड़ी देर क्या हो गई कि अंधेर हो गया, अंधेर हो गया कहने लगते हैं। होता ये है कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। किस वक्त आएगा हरि? देखो तुम भी अधीर हो गई ना। माँ हूं ना मैं उसकी। अब बच्चा नहीं रहा हो, 50 बरस का हो गया है, उसके लड़कों का बच्चों का भी शादी ब्याह हो गया। लेकिन बच्चे माँ के लिए हमेशा बच्चे रहते हैं, चाहे वो 100 साल के हो जाए। पर आप नहीं समझोगे माँ की ममता को। आप तो वैसे भी दुनियादारी के फेर से ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन मुझ में अभी थोड़ी सी मोह माया बाकी है। सोचती हूँ आपकी तरह मैं भी छोड़ दूँ,
लेकिन छोड़ नहीं पाती। अब देखो ना, जेल में हूँ, आखिरी घड़ियां गिर रही हूँ, फिर भी तीज त्योहार मनाने को मन कर जाता है। मन करता है लड़कियों को, बहुओं को उपहार दूं। थोड़ी बहुत मोह माया को तो मैं भी गलत नहीं समझता। गड़बड़ी तो तब होती है जब ये मोह माया ना बढ़ने लगती है। हाँ? उस पर संयम जरूरी है, और वो तुम में आ गया है। हाँ? अरे महादेव की समाधि पर नहीं गया, चलोगी तुम भी? हाँ हाँ, आज तो मेरे शरीर में ताकत आई। आज तो मैं महादेव से भी मिलूंगी और हरिलाल से भी मिलूंगी। अब तक यकीन नहीं होता है कि महादेव हमारे बीच नहीं है। लगता है जैसे स्वराज के काम से कहीं दूर चला गया। आज से हम महादेव की मृत्यु के बारे में सोचकर, आंसू बहाकर, ये नहीं कर हम कोई रचनात्मक काम में व्यस्त रहेंगे। हाँ? पर जेल में रहकर रचनात्मक कार्य भी कहाँ हो पाते हैं। डॉक्टर भी बीमारी की वजह से चरखा चलाने के लिए भी मना करते हैं। लेकिन गुरुजी, जब इतना बता दिया है आपने, तो ये भी बता दीजिए कि मेरे लिए कौन कौन से रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। तुम्हारी अवस्था को देखते हुए मैं 2-3 काम सुझा सकता हूँ। करोगी? हाँ? एक, महादेव की मृत्यु के बारे में अपने दिमाग में कोई नकारात्मक सोच घुसने नहीं दोगे। 2, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकती हो। 3, सुशीला या मनु से रामचरितमानस या भागवत का पाठ सुन सकती है। और मैंने सुना है कि तुम डॉक्टरों की बात भी नहीं मानती हो। हाँ? कभी कैस्टर ऑयल लेने की जिद करती हो, तो कभी स्वादिष्ट व्यंजन खाने की जिद करती हो। हाँ? जेल में रहकर ये सब मांग उचित नहीं है। हाँ? जो आज्ञा। बापू, हमारे लिए नई डायरी आई है। अब मैं भी नियमित डायरी लिखा करूंगी। मुझे भी डायरी मंगवा दो ना, मैं भी डायरी लिखूंगी। डायरी? इन्हें? हाँ? तुम्हें तो ना वो रफ कागज लेकर उस पर साफ साफ लिखने का अभ्यास करो बस। बा, आप मेरी डायरी ले लीजिए। मैं प्यारेलाल जी से या जेलर से बोल के दूसरी डायरी मंगवा लूंगी। वैसे भी मुझे ना आदत है ना फुर्सत डायरी लिखने की। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी डायरी। बा, हमारे बापू ऊपर से नीम की तरह कड़वे, मगर अंदर से उनकी बातें औषधि की तरह काम करती हैं। इसीलिए तो आंख मूंद कर उनकी हर बात मान लेती हूँ। मगर मुझे पहले बहुत बुरा लगता था तेरे बापू का ऐसा स्वभाव। बुरा तो अब भी लगता है। देखना, सबके सामने कुछ भी रूखा बोल देते हैं ये। माँ, मैं गैर थोड़ी हूँ। मैं तेरी बात नहीं कह रही, इनके लिए तो सारी दुनिया अपनी है। मैं अभी इनके जैसे महात्मा नहीं हो पाई। अरे वाह, आप तो बापू से भी ज्यादा महात्मिन हैं। कौन कहता है कि हमारी बाप बापू से एक कदम भी कम है? मस्का लगाती है बात को। अच्छा बा, मुंह खोलो। वैजी की दवाई आई है, कल इसी से आराम हुआ था ना आपको? अब मुझे आराम तो हरिलाल को मिलने के बाद ही होगा। लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? उसे खबर तो है ना?
खबर है उसे। हाँ? जेलर ने उसी दिन परमिशन दे दी थी उसे। फिर आया क्यों नहीं? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? कहीं अटक गया होगा, आ जाएगा। तुम्हें धीरज रखना चाहिए। हाँ? इतनी मोह माया उचित नहीं है। यही कहना चाहते हो ना कि मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन माँ के लिए उचित है, यही कहना चाहता हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कभी रामदास या मणिलाल के बारे में तो कुछ नहीं कहा। देवदास को भी मना ही करती कि रोज रोज आने का कष्ट ना उठाया करे, लेकिन हरिलाल से ही मन नहीं भरता। जी चाहता है जितने दिन जीवन है उसके साथ रहूं। हरिलाल का भी तो मन होना चाहिए ना। वाह, मेरा मन कहता है आज हरि भाई जरूर आएंगे। मन तो मेरा भी कहता है, लेकिन बापू भी तो ठीक कहते हैं, उसका मन भी तो मिलना चाहिए। ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। वाह, आप हरि भाई से बहुत प्यार करती हैं ना? प्यार ही तो नहीं दे पाई उसे। इस मामले में वही सबसे ज्यादा भागा रहा है। हम दोनों का प्यार ही उसे नहीं मिल पाया, इसीलिए भटक गया बेचारा। अरे, देवता को याद करो और देवता हाजिर। वाह, आपने हरि भाई को याद किया और वो देखिए आ गए हरि भाई। अरे हरिलाल, आजा 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 आजा, बैठ मेरे पास। वाह, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वाह। अरे सुशीला, शराब पीकर आया है? तू शराब पीकर आया है? नहीं वाह, मैंने शराब नहीं पी वाह। इसीलिए तू इतने दिन नहीं आया। वाह, इसीलिए तू इतने दिन नहीं आया। सो गया था वाह। झूठ मत बोल। वाह, तू दुनिया को बेवकूफ बना सकता, मैं तेरी माँ मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। झूठ मत बोल। हे भगवान, हे भगवान, ये सब दिखाने के लिए क्या मुझे जिंदा रखा है? हे भगवान। हरिलाल, तू यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से, इससे पहले कि तुझे बापू देखे इस हालत में। तू यहाँ से चला जा, चला जा। मत वाह। हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये किस जन्म की सजा मिल रही है हमको? हे भगवान। सुशीला, सुशीला, इसे यहाँ से ले जा, इसे यहाँ से ले जा, जल्दी ले जा इसे यहाँ से। मर गई तेरी माँ और बापू। चलिए हरि भाई, चलिए चलिए। ये मेरा हरिलाल नहीं, चलिए, ये मेरा हरिलाल नहीं है। चलिए, ये मेरा हरिलाल नहीं है, ये मेरा हरिलाल नहीं हो सकता, ये मेरा हरिलाल नहीं हो सकता, ये मेरा हरिलाल नहीं हो सकता। मेरा हरिलाल शराब नहीं पी सकता, मेरा हरिलाल शराब नहीं पी सकता। हे भगवान, हे भगवान, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा है ये सब दिखाने को? अब मैं